Hey, welcome YouTube. I'm Aniket and you're watching Vet Study. So today we are going to discuss about the most requested topic on this channel, that is the brain. So this topic was requested by my juniors and so here it is. Brain is very important and complex topic and some students find difficulty in this topic. Okay. So here we discuss brain in detail. So brain is divided into three parts. Okay, so that is the prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. The prosencephalon is also known as the forebrain, the mesencephalon is also known as the midbrain, and the rhombencephalon is also known as the hindbrain. Prosencephalon is again divided into two parts, that is the diencephalon and telencephalon. Diencephalon have different parts like epithalamus, thalamus, metathalamus and hypothalamus. Telencephalon contains the cerebral hemisphere, whereas the myelencephalon, which is a part of rhombencephalon, because rhombencephalon is again divided into two parts, that is the myelencephalon and metencephalon. So myelencephalon contains the medulla oblongata and metencephalon contains the pons and cerebellum. So यहाँ पर हमने क्या देखा कि ब्रेन को हमने तीन पार्ट के अंदर ब्रॉडली डिवाइड करा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, या फिर प्रोजेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन, रॉम्बेंसेफलॉन. फिर अगेन हमने उनके पार्ट देखे और हम हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. You can see in this picture that this is the forebrain. This whole part is forebrain. Okay, this part is midbrain, and this blue one is the hindbrain. So let's discuss about the prosencephalon, that is the forebrain. Prosencephalon is again divided into diencephalon and telencephalon, which we already discussed. So diencephalon is divided into epithalamus, thalamus, metathalamus and hypothalamus. And epithalamus again divided into pineal gland and habenula. It means epithalamus contain the pineal gland and habenula. The thalamus contain the dorsal thalamus and the subthalamus. These are part of thalamus. Okay, let's start with the pineal gland. Pineal gland is a small median body which project dorsally. So I will show you the image of pineal gland in brain. Next, the nature of this gland is endocrine and it secretes melatonin and other compound which actually affect the sexual activity of the animal or human. After pineal gland, there is habenula. Habenula consists of the habenular nuclei which receives the fiber from the telencephalon. So nuclei is the collection of cell body of in neurons. Okay, so this is habenula. After this we have this habenula is important part of the olfactory pathway. Okay, after this we have thalamus. Thalamus is the largest part of the diencephalon. So this is important, the thalamus is the largest part of this diencephalon. This thalamus have the dorsal thalamus and the subthalamus. This dorsal thalamus is composed of large number of nuclei, and this subthalamus is the rostral continuation of the tegmentum. So what is this tegmentum? We will discuss this tegmentum when we discuss the midbrain or the mesencephalon. Okay, so you just remember the tegmentum here. आपको सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है, tegmentum याद रखना है. हम इसे tegmentum को जब हम midbrain को डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा. आपको यहाँ पर क्या याद रखना है सिर्फ कि subthalamus is the rostral continuation. I think you are aware about the rostral word. Okay, तो ये planes बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आपको नहीं पता है तो ये जाकर rostral देखिएगा एक्चुअल इमेज में कि rostral जो plane है वो कैसा होता है. तो ये rostral continuation होता है tegmentum का and it act as a relay station. So what do we mean by relay station? कि अभी मैं आपको एक इमेज शो करूंगा. इस थैलेमस से ही हमारी सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो होते हुए जाकर सेरिब्रम तक जाती है. That is why we call it the relay station. Okay. After thalamus we have the hypothalamus. Hypothalamus form the floor. It basically form the floor and the wall of the third ventricle. Rostrally it basically constitute the optic chiasm. So हाइपोथैलेमस के रोस्टली अगर आप देखेंगे तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्टिक क्याज्म देखने के लिए मिलेगा. अगर आप कॉर्डली देखेंगे तो आपको मेमलरी बॉडी देखने के लिए मिलेगी. ठीक है. आफ्टर दिस वी हैव द हाइपोफाइसिस और द पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू इन्फंडिबुलम. राइट. Next we have the hypophysis is divided into three parts, that is the adenohypophysis or the anterior portion, intermediate part or the neurohypophysis. After this hypothalamus we have the metathalamus. Metathalamus is again divided into two parts, that is the lateral geniculate body or lateral geniculate body and the medial geniculate body. This lateral geniculate body have the fiber from the optic tract and terminate in it. Okay, so the fiber from the optic tract terminate in the lateral geniculate body, whereas the fibers from the
acoustic, it receives medial geniculate body receives the acoustic fiber and it relay the acoustic information to the cerebral cortex. So ये आपको कहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा, जब हम विजुअल पाथवे और दी ऑडिटरी पाथवे डिस्कस करेंगे, जो कि हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको क्या याद रखना है कि मेटाथैलेमस के अंदर हमारे दो टाइप की बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं, पहली है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और दूसरा हमारा मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल वाली इज समथिंग रिलेटेड टू दी ऑप्टिक, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक विजुअल पाथवे से रिलेटेड है, और मीडियल वाली हमारी किससे रिलेटेड है, अकॉस्टिक, ठीक है, या फिर ऑडिटरी पाथवे से हमारी रिलेटेड है। सो दिस इज हाइपोथैलेमस। अगर आप एक्चुअल ब्रेन के अंदर देखेंगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा हाइपोथैलेमस ऐसा। नेक्स्ट टू हाइपोथैलेमस, सो दिस इज ऑल्सो हाइपोथैलेमस इन दिस ब्रेन. You can appreciate this. After this we have the pineal gland. So this is the pineal gland in brain. Okay, so you can appreciate the pineal gland. After pineal gland we have the thalamus region. So this is the thalamus region, and you can also appreciate the hypothalamus in this. And this is the mammillary body. This one is the mammillary body. After this we have the thalamus. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर से जो हमारी इंफॉर्मेशन जाती है तो ये पास इससे होती है, थैलेमस से होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंसरी एरिया ऑफ नियोपैलियम, यहाँ पर जाकर ये हमारी अटैच मतलब हो रहे हैं, ठीक है, फाइबर्स, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिले स्टेशन बोलते हैं थैलेमस को। तो अब LGN, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये किसके अंदर इन्वॉल्व था हमारा, ये हमारा विजुअल पाथवे के अंदर इन्वॉल्व था, राइट। तो हम क्या देखेंगे, अब मैं आपको विजुअल पाथवे इन शॉर्ट बता देता हूं, ठीक है। क्या होता है कि मान लीजिए यहां से लाइट आएगी, फिर जो ऑप्टिक नर्व है उससे होती हुई हमारी कहां पर आएगी, ये ऑप्टिक क्याजम होता है, ठीक है, यहां पर आएगी। उसके बाद क्या होगा, ये हमारी लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस या फिर बॉडी यहां पर प्रेजेंट होगी, उससे होते हुए फिर हमारे ऑप्टिक रेडिएशन और फिर हमारा कहां पर पहुंच जाएगी, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पर, ठीक है, जहां पर हमारी जो इमेज है वो एनालाइज होगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, विजुअल पाथवे होता है, ठीक है। अगेन अगली इमेज के अंदर एज यू कैन सी हियर दैट द लाइट कम्स हियर, आफ्टर दिस देयर इज ऑप्टिक नर्व, then there is optic chiasm. After optic chiasm there is lateral geniculate nucleus या फिर LGN, lateral geniculate body भी you can say, and after this the information go to the primary visual cortex where the information is analyzed and जो आपका ब्रेन है वो समझेगा कि हाँ ये इमेज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रही है। So this is the visual pathway. After visual pathway we have the auditory pathway, right? सो इन ऑडिटरी पाथवे जो इंफॉर्मेशन है वो कॉकलिया से कहाँ जाएगी, कॉकलियर न्यूक्लियस में। अब कॉकलियर न्यूक्लियस हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर, ठीक है। फिर वहां से हमारा कहाँ जाएगा, सुपीरियर ऑलिव, और सुपीरियर ऑलिव से होती हुई जाएगी इंफीरियर कॉलिकुलस में, और इंफीरियर कॉलिकुलस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिड ब्रेन के अंदर। फिर मिड ब्रेन से होती हुई कहाँ जाएगी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर, और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से होते हुए फिर ये हमारा कहाँ चला जाएगा, सेरिब्रम के अंदर, जो कि हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, ठीक है, मतलब सेरिब्रम के अंदर ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्या ऑडिटरी पाथवे हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले कहां से कहां जा रहा है, पहले हमारा मेडुला मतलब कि हाइंड ब्रेन से गया मिड ब्रेन से कहां गया, फोर ब्रेन। तो हाइंड से मिड से फोर, ठीक है, ये आपको चीज यहां पर याद रखनी है। एक और यहां पर अच्छा डायग्राम दे रखा है, इसमें आप और समझ सकते हैं कि आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आप समझने के लिए देख सकते हैं कि कॉकलियर नर्व है, ठीक है, कॉकलियर नर्व आई, ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेंगे मेडुला के अंदर, उसके बाद मिड ब्रेन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पर ये आपका मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, और फिर ये हमारा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ये दोनों कैसे अटैच्ड होते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सी द हाइपोथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस पार्ट एंड दिस इज द पिट्यूटरी। सो ये हमारे यहाँ पर इन्फंडिबुलम से अटैच होता है। पिट्यूटरी के हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी डिफरेंट फंक्शन करती है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और इसके अलावा पोस्टीरियर हमारी वाटर बैलेंस और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन में हेल्प करती है बाय इट्स हॉर्मोन्स, ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर पीनियल ग्लैंड, यू कैन सी द पीनियल ग्लैंड, यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट द थैलेमस, दिस पार्ट इज द थैलेमस। आफ्टर थैलेमस वी हैव द हाइपोथैलेमस, सो दिस होल पार्ट इज द हाइपोथैलेमस, ओके। एंड यहाँ पर आपको सुपीरियर कॉलिकुलाई है, इसी के पीछे आपके इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ डायनसेफ्लॉन। अगर मैं बात करता हूं फंक्शन की तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फंक्शन को। द फर्स्ट इज द पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड का हमारा फंक्शन क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट पीनियल ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट रेगुलेट द सेक्सुअल एक्टिविटी, और सीजनल चेंज जो एनिमल के अंदर आते हैं वो भी हमारे रेगुलेट होते हैं पीनियल ग्लैंड के थ्रू ही। आफ्टर दिस स्लीप वेक साइकिल भी यही हमारा कंट्रोल करती है। आफ्टर पीनियल ग्लैंड वी हैव द थैलेमस। थैलेमस
में हमारे एफरेंट नर्व ट्रैक आते हैं सभी सेंसरी ऑर्गन से, और वो यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं थैलेमस के अंदर, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो है हमारा ऑल्फैक्टरी सेंस। ये यहाँ पर नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो हमारा वहां पर ऑल्फैक्टरी बल्ब पर आता है। जब आप ब्रेन देखेंगे तो आपको ऑल्फैक्टरी बल्ब देखने के लिए मिलेगी, वो वहां पर आता है। तो ये इस स्ट्रक्चर से दूर होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है। तो चैनल इनपुट आते हैं फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन एक्सेप्ट दी ऑल्फैक्टरी सेंस, ठीक है। इसके अलावा हमारी बात आती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बहुत से फंक्शंस होते हैं और ये हमारा फिजियोलॉजी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाइपोथैलेमस इट कंट्रोल द हाइपोफाइसिस और द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दस एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर ये कि हाइपोथैलेमस हमारा अल्टीमेटली किसे कंट्रोल करता है? हमारा पिट्यूटरी को। और पिट्यूटरी हमारा क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। आफ्टर दिस hypothalamus have major roles in behavior like eating, drinking, regulate the body temperature and autonomic nervous system, ठीक है। तो इन सभी के अंदर इसका रोल होता है। सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन में भी रोल होता है। इमोशनल एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, सर्काडियन रिदम कंट्रोल एंड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सेंटर, ये सभी हमारे कहाँ लोकेटेड होते हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर। Now the next portion is the telencephalon. This telencephalon consists of paired cerebral hemisphere. Okay. So these are the cerebral hemispheres, and between these two cerebral hemisphere there is a cerebral longitudinal fissure, और ये cerebral longitudinal fissure हमारे दोनों cerebral hemisphere को अलग करता है, right? Next to this we have some स्ट्रक्चर जिन्हें हम बोलते हैं गायराई और सल्साई। सल्साई क्या होते हैं? ये हमारे ग्रूव्स होते हैं, ठीक है। और ये जो एलिवेटेड पोर्शन है या एलिवेटेड बैंड है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? गायराई बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सो सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये हमारा ग्रे पोर्शन होता है, सरफेस होता है, इसे हम पेलियम भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारा सेरिब्रल व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो बाहर की साइड हमारा पेरिफेरी पर क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और वो हमारा ग्रे इन कलर होता है। फिर अगर हम ये इस पेलियम की बात करें, सो दिस पेलियम इज डिवाइडेड इनटू few part based on the evolutionary history. Okay, so pallium is divided into paleopallium, archipallium and neopallium. This paleopallium is phylogenetically oldest part. तो ये ब्रेन का हमारा oldest part है पेलियम का, और आर्किपेलियम हमारा नेक्स्ट ओल्डेस्ट है, और नियोपेलियम हमारा यंगेस्ट पार्ट होता है। जो पेलियोपेलियम है, इट कॉन्स्टिट्यूट द वेंट्रल पार्ट ऑफ ईच हेमिस्फेयर। ओके, सो दिस इज द वेंट्रल पोर्शन। दिस आर्किपेलियम फॉर्म द मीडियल पार्ट of each hemisphere, and the neopallium form this constitute the predominant part of the cerebrum. The paleopallium is primarily related to the olfaction. Okay, so this is the division of pallium. After pallium हम बात करते हैं, I will show you the olfactory. So this is the olfactory bulb. Okay, और यहाँ पर ये आपका क्या है? एमिग्डालॉइड बॉडी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे सेवरल न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और कुछ नहीं होती है बॉडी, ठीक है। तो हमने किस किस के बारे में बात कर ली? विजुअल पाथवे के बारे में बात कर ली, और ऑडिटरी पाथवे के बारे में बात कर ली। अब हमें बात करनी है ऑल्फैक्टरी पाथवे के बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि थैलेमस के अंदर हमारा एक्सेप्शन क्या था कि वो सबकी इंफॉर्मेशन को रिले कर रहा था एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो मैंने एक्सेप्शन वहां पे क्यों बताया? क्योंकि वो स्ट्रक्चर अलग है। अब देखिए ऑल्फैक्टरी पाथवे के अंदर कैसे होता है। यहां से हमारे स्पेशल एफरेंट न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के अंदर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अब ये न्यूरॉन्स हैं, तो क्या होगा कि ये जितने भी हमारे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, ये सारे हमारे बंडल हो जाते हैं, और बंडल होने के बाद ही हमारा क्या बनाएंगे? ऑल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं। अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व हमारी कहां से जाएंगी? ये हमारे क्रिप्रीफॉर्म प्लेट, अगर आपने स्कल पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा क्रिप्रीफॉर्म प्लेट क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो क्रिप्रीफॉर्म प्लेट से होते हुए हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर चली जाएंगी। ऑल्फैक्टरी बल्ब ये रहा, ठीक है। तो यहां से याद रखिए कि ये हमारा जो ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा है, यहाँ पर हमारे जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन है वो प्रेजेंट होंगे, वहां से हमारा निकलेगा। फिर यहाँ पर हमारा एक पोरस सा स्ट्रक्चर होता है स्कल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्रीफॉर्म प्लेट, ठीक है। यहाँ से ये नर्व्स निकल करके हमारी कहाँ टर्मिनेट हो जाएंगी? ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, और फिर यहाँ पर हमारा मतलब वो समझेंगे कि किस चीज की स्मेल है, ठीक है, ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करेगा। इसके बाद तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑल्फैक्टरी पाथवे। आफ्टर ऑल्फैक्टरी पाथवे वी हैव द लिम्बिक सिस्टम। सो लिम्बिक सिस्टम इज द स्ट्रक्चर विच इज इन्वॉल्व इन द इमोशनल बिहेवियर, ठीक है, जो कि हमारा इमोशनल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब लिम्बिक सिस्टम के हमारे दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सो लिम्बिक सिस्टम हैव टू कंपोनेंट्स, द फर्स्ट इज द कॉर्टिकल कंपोनेंट एंड द अदर वन इज द सब कॉर्टिकल कंपोनेंट। कॉर्टिकल कंपोनेंट के अंदर हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं, लाइक सिंगुलेट, गायराई, पायरिफॉर्म लोब और हिप्पोकैम्पस, ठीक है।
सब कॉर्टिकल कंपोनेंट के अंदर हमारा कुछ कंपोनेंट आते हैं जो कि डायंसेफलॉन से हैं, कुछ आते हैं हमारा मिड ब्रेन से। तो डायंसेफलॉन से हमारा हैबियोनुला आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है और थैलेमस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मिड ब्रेन से हमारा इंटरपेडिकुलर एंड टैगमेंटल न्यूक्लिया हमारे होते हैं। जब हम मिड ब्रेन डिस्कस करेंगे तब हम इन दो चीज़ों को देखेंगे। इसके अलावा एमिग्डालॉइड बॉडी भी हमारी इसी के अंदर आती है। तो ये हमारा सब मिलकर के क्या बनाता है, लिम्बिक सिस्टम, और ये हमारे इमोशनल बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारा इनिशिएट करता है विसरल मोटर एक्टिविटी को। सो व्हाट इज विसरल मोटर एक्टिविटी? विसरल मोटर एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटी है, जो वो पोर्शन है ब्रेन का जो कि हमारे जो जैसे कि स्मूथ मसल्स हैं, कार्डियक मसल हैं, ग्लैंड्स हैं, जहां पर वो इनर्वेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विसरल मोटर एक्टिविटी। तो उस पार्ट को कंट्रोल कौन करता है, दिस लिम्बिक सिस्टम, ओके। इसके अलावा ये हमारा इमोशनल बिहेवियर को ट्रिगर करता है, जैसे कि फियर, एग्रेशन और अपेरेंट प्लेजर को, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा एक इनपुट देता है, ग्रेट इनपुट देता है थ्रस्ट, हंगर और सेक्सुअल बिहेवियर को। तो हम कह सकते हैं कि मेजरली एनिमल का जो बिहेवियर है वो ये लिम्बिक सिस्टम उसे कंट्रोल करता है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हो, चाहे वो उसका नॉर्मल बिहेवियर हो, ठीक है। जैसे कि एग्रेशन हो गया, ठीक है, अपरेंट प्लेजर, फियर, ये सब। इसके बाद बात आती है नियोपेलियम एंड सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ये नियोपेलियम और सेरिब्रल हेमिस्फेयर इट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द टेलेंसेफ्लॉन, जो कि हमें पता है, ठीक है, कि ऑब्वियस ही बात है कि जो नियोपेलियम है वो ही हमारा मेजर पार्ट हमारा फॉर्म करता है। इसके अलावा ये हमारा डोर्सोलेटरल पार्ट बनाता है हर एक हेमिस्फेयर का। डोर्सोलेटरल पार्ट, डोर्सो और साइड में होगा लेटरल। तो ये पूरा पोर्शन हमारा कौन बनाता है, ये नियोपेलियम ही बनाता है। अब डीप लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर हमारा सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को। आपको यहाँ पर ये चीज शो करता हूं मैं, ये डीप लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। तो ये हमारा किसे डिवाइड कर रहा है, दोनों लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अलग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसवर्स फिशर किसे अलग कर रहा है, सेरिब्रम को सेरिबेलम से, ठीक है। किसे सेरिब्रम को सेरिबेलम से, ये कौन अलग कर रहा है, ट्रांसवर्स फिशर। और लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेरिब्रम जो है, ठीक है, लेफ्ट और राइट जो है उन्हें अलग अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ट्रांसवर्स हमारा किसे अलग कर रहा है, सेरिब्रम को फ्रॉम द सेरिबेलम। इसके अलावा टू फैसिलिटेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ नियोपेलियम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू लोब्स नेम्ड अकॉर्डिंग टू द ओवरलाइंग बोन्स, ठीक है। नियोपेलियम को हमने इसके डिस्क्रिप्शन के लिए हमने डिफरेंट लोब्स के अंदर डिवाइड करा है, और इस नियोपेलियम के ऊपर जो बोन होती है हमने वही इसे नाम दे दिया। कैसे? अब जैसे नियोपेलियम, ये आपने शायद सुना होगा, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल, ठीक है। तो वो जो पार्ट है वो किसके पार्ट है, नियोपेलियम के ही पार्ट है। तो फ्रंटल क्या है, फ्रंटल मेजरली हमारा मोटर एरिया होता है, जो पैराइटल पोर्शन है वो हमारा सेंसरी होता है, टेम्पोरल पोर्शन हमारा ऑडिटरी होता है, और ऑसिपिटल पोर्शन हमारा विजुअल होता है, ठीक है। अब ये चीजें कैसे, ये दो चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी हमने डायंसेफ्लॉन में डिस्कस करा है। देखिए कैसे, अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑसिपिटल है वो विजुअल है। अभी हमने देखा था ये विजुअल पाथवे के अंदर कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहां पर जा रही थी, वो हमारी ऑसिपिटल, ये ऑसिपिटल लोब ही तो होता है, तो वो ऑसिपिटल एरिया में जा रही थी, ठीक है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। तो इसीलिए हमने क्या बोला, ऑसिपिटल जो है वो हमारा क्या है, विजुअल के लिए। अब हमने देखा था ऑडिटरी के लिए क्या है, टेम्पोरल। तो हमने जब ऑडिटरी पाथवे डिस्कस करा था, तो आप यहां पर देखिए जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है वो कहां पर है, ये टेम्पोरल ही तो है साइड वाला, तो ये यहां पर जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, हमने इसे टेम्पोरल को ये बोल दिया, ठीक है। अभी लोब्स हमारे कैसे लोकेटेड होते हैं आप ये यहां पर देख सकते हैं। फ्रंटल हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, पैराइटल हमारा ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। पैराइटल मतलब ऊपर वाला होता है, डॉर्सली जो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट होगा वो हमारा टेम्पोरल हो गया। अगर मैं आपको मतलब प्लेन्स के बेसिस में बताऊं तो जो हमारा एंटीरियर वाला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंटल। इसके अलावा डोर्सल हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, पैराइटल। लेटरल वाला हमारा क्या हो जाएगा, टेम्पोरल। और जो हमारा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑसिपिटल, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये नीचे तो ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। तो बस ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, ऑसिपिटल हो गया, ठीक है। बट जो भी मैंने प्लेन आपको बताए हैं ना, ये ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बताए हैं, ठीक है। अगर आप एनिमल्स में जाएंगे तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि प्लेन्स ये आपको पता ही होगा कि ह्यूमंस में और एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। तो पर फिर भी जो ब्रेन है वो तो सेम ही रहेगा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। इसके बाद आता है हमारा कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है किसी भी हेमिस्फीयर का। तो इसके अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कॉर्पस स्ट्रेटम। व्हाट इज दिस कॉर्पस स्ट्रेटम? ये कॉर्पस स्ट्रेटम हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है ग्रे मैटर का, व्हाइट मैटर के अंदर, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, यहाँ पर एक इमेज शो करी थी, देखिए
ये व्हाइट मैटर है अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ग्रे मैटर का एक्यूमुलेशन, ऐसे ऐसे ग्रे मैटर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। जहां पर हमारा व्हाइट मैटर के अंदर ग्रे मैटर आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्ट्रेटम, एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रे मैटर विद इन द व्हाइट मैटर, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमारी डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे कि कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटेमन, क्लोस्ट्रम एंड एमेग्डालॉइड बॉडी, ठीक है। तो ये सब हमारे कॉर्पस स्ट्रेटम के अंदर आते हैं। मैं हर किसी का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, देखिए। दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज द एमेग्डालॉइड बॉडी, ठीक है। आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट क्लोस्ट्रम इन दिस, एंड दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ओके। यहां पर भी आप देख सकते हैं, दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस वन इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। एक फोल्ड टाइप होता है और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक फोल्ड होता है, ठीक है। दिस इज द क्लोस्ट्रम, दिस पोर्शन एंड पुटेमन, दिस इज पुटेमन, ओके। तो ये आपका फोल्ड होता है। अब लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉर्डेट न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है, रोस्टल पार्ट ऑन द फ्लोर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। देखिए, जो लेटरल वेंट्रिकल होगा उसका जो फ्लोर होगा, उसका जो रोस्टल पार्ट होगा वो क्या होगा, वो लोकेशन होगी कॉर्डेट न्यूक्लियस की, ठीक है। समझ पा रहे हैं? इसके लिए प्लेन्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये रोस्टल लेटरल ये समझ पाएंगे। इसके बाद बात आती है पुटेमन। पुटेमन हमारा कहां पर प्रेजेंट होता है, लेट्रो वेंट्रल टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस। कॉर्डेट न्यूक्लियस के लेट्रो वेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। लेट्रो मतलब कि साइड में, ठीक है। अगर मैं लेम लैंग्वेज में बोलूं तो लेट्रो मतलब साइड में, ठीक है, और वेंट्रो मतलब नीचे, तो वहां लेट्रो वेंट्रली हमारा प्रेजेंट होगा, मतलब कहीं इन बिटवीन हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, पुटेमन। अब यहां पर भी देख सकते हैं पुटेमन आपका लेट्रो वेंट्रली प्रेजेंट है, ठीक है। और जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो आपका कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। इसके बाद क्लोस्ट्रम की बात करें तो ये हमारा एडजेसेंट होता है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पुटेमन। पुटेमन के लेटरल एस्पेक्ट के एडजेसेंट हमारा प्रेजेंट होता है। तो क्लोस्ट्रम देखा, पुटेमन के लेटरली हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद एमेग्डालॉइड बॉडी, तो एमेग्डालॉइड बॉडी हिप्पोकैम्पस के जस्ट एंटीरियरली लोकेटेड होती है, एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हिप्पोकैम्पस हमारा ये वाला पोर्शन होता है, इसके आगे हमारी क्या हो गई, एमेग्डालॉइड बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन हुआ। उसके बाद बात आती है फंक्शन की। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो क्लोस्ट्रम का फंक्शन क्या है, नॉट वेल अंडरस्टूड, अभी तक कुछ समझा नहीं गया है, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये कनेक्शंस देता है किस किस को, लिम्बिक सिस्टम को और विजुअल सिस्टम को। देखिए, पूरा ब्रेन ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम ऐसा हो सकता है कि जो एक पोर्शन में एक चीज आपको बताऊं कि भाई इसका ये फंक्शन है, तो वो सेम फंक्शन आपको कहीं और भी दिख जाए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो बाकी न्यूक्लियाई हैं उनका वॉलेंट्री पोस्चर और मूवमेंट के अंदर फंक्शन होता है। नेक्स्ट इज द कॉर्पस स्ट्रेटम। कॉर्पस स्ट्रेटम हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मूवमेंट का करने के लिए। कैसे कराता है ये चीज, ये हमारा सेलेक्टिव इनिबिशन करता है मोटर आउटपुट का। मान लीजिए कोई सेंसेस गए ब्रेन के पास और वहां से हमारा मोटर आउटपुट आ रहा है, सेंसरी इनपुट गया, मोटर आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो उस मोटर आउटपुट के अंदर भी हमें कितनी चीजें सेलेक्टिवली इनिबिट करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कॉर्पस स्ट्रेटम डिसाइड करेगा, ताकि हमारा एप्रोप्रिएट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में हमारा मूवमेंट हो, ठीक है। तो ये कॉर्पस स्ट्रेटम हमारा डिसाइड करता है। अब इसके बाद आता है नोट। एक जो कमिसरल फाइबर्स होते हैं वो हमारे कनेक्ट करते हैं कोरस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ टू हेमिस्फेयर को। अब ये कमिसरल फाइबर हमारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम क्या है बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूं। अगर आप दोनों हेमिस्फेयर को अलग करना चाहते हैं तो आपको बीच में से कट करने पड़ेंगे दोनों हेमिस्फेयर को। तो वो जो दोनों हेमिस्फेयर नीचे से कनेक्टेड होते हैं ना, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, इस कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे ये कमिसरल फाइबर्स होते हैं जो दोनों हेमिस्फेयर को हमारे जोड़ करके रखते हैं। तो दिस कॉर्पस कैलोसम इनेबल्स द टू हेमिस्फेयर टू फंक्शन कोहेरेंटली एज ए सिंगल कॉग्निटिव सेंटर, ठीक है। समझ में आती है ये बात यहाँ पर। इसके बाद बात आती है फंक्शन ऑफ टेलेंसेफ्लॉन। क्या फंक्शन होते हैं, तो सबसे पहले है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे डिफरेंट एरिया के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है, जैसे कि सबसे पहला है सोमेस्थेटिक एरिया, वेस्टिबुलर एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, गस्टेटरी एरिया, मोटर एरिया, विजुअल एरिया एंड ऑडिटरी एरिया। भाई देखिए, मोटर एरिया, गस्टेटरी एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया और वेस्टिबुलर एरिया, ये सारे तो समझ में आते हैं कुछ ना कुछ। सोमेस्थेटिक एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो देखिए। सोमेस्थेटिक एरिया हमारा टैक्टाइल और काइनेस्थेटिक इनपुट हमारा लेता है स्किन से, मतलब सेंसेशंस हमारी यहाँ पर जाती हैं, ठीक है। गस्टेटरी एरिया के अंदर क्या जाएगा, टंग और फेरिंक्स से जो हमारा टेस्ट है वो यहाँ पर जाकर एनालाइज होगा। इसके बाद बात आती है ऑल्फैक्टरी एरिया। तो ऑल्फैक्टरी एरिया हमारा नोज के लिए होता है, ऑल्फैक्शन के लिए होता है। ये हमारी सारी सेंसेस हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा विजुअल एरिया। विजुअल एरिया हमारा एक्सटेंड कहां पर होता है, मीडियल सरफेस एंड पार्ट ऑफ द डोर्सोलेटरल सरफेस ऑफ द ऑसिपिटल लोब। मैंने बताया था क्योंकि ऑसिपिटल लोब के अंदर ही हमारा वो एरिया प्रेजेंट होता है।
तो ये वहां पर जाकर हमारा विजुअल एरिया हमारा प्रेजेंट होता है। इसके बाद ऑडिटरी एरिया लोकेटेड कहाँ पर था हमारा, ये हमारा रोस्ट्रल साइल्वियन गायरस पे हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बेसिकली लोकेशंस हैं। फिर आता है वेस्टिबुलर एरिया, ये हमारा एडजेसेंट होता है ऑडिटरी एरिया के। मोटर एरिया लोकेटेड होता है हमारा रोस्ट्रल टू द सोमेस्थेटिक एरिया। इसके अलावा बात आती है मोटर एरिया। ह्यूमंस का जो मोटर एरिया है, इसके अंदर हमारे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेड्स जाइंट पिरामिडल सेल। ये जो बेड्स जाइंट पिरामिडल सेल हैं, ये हमारे लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट एक्सोन होते हैं, जो कि हमारे कॉर्टेक्स से कहां तक जाते हैं, सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाते हैं, ठीक है। इतनी लेंथ इनकी होती है और इनकी थिकनेस भी सबसे ज्यादा होती है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात आती है एसोसिएशन कॉर्टेक्स की। एसोसिएशन कॉर्टेक्स हमारा सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, आपको यहाँ पर कंट्रोल तो करना है बॉडी को ब्रेन से, बट उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी तो होना चाहिए। जो 10th के अंदर हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपको कनेक्शंस भी तो बनाने पड़ेंगे। तो ये एसोसिएशन एरिया उसी के अंदर काम आता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल। जिस एनिमल की जितनी इंटेलिजेंस होती है वो हमारी इसी से एसोसिएशन एरिया से हमारी डिसाइडेड होती है। इसके अलावा हिप्पोकैम्पस, जो कि हमारा गायरस। गायरस क्या है, दो ग्रूव्स के बीच में जो भी एक मतलब फोल्ड मिल जाता है उसे हम गायरस बोलते हैं। गायरस ऑफ द आर्किपेलियम फोल्डेड इनवर्ड डीप टू द पायरिफॉर्म लोब, ठीक है। दैट इन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा इसका फंक्शन हो जाता है टेलेंसेफ्लॉन का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मिड ब्रेन। हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है, अब हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन को, ठीक है। तो मिड ब्रेन या फिर मेसेंसेफेलॉन हमारा क्या होता है, पहले आपको मैं इमेज के अंदर दिखा देता हूं। सो दिस रेड पोर्शन इज द मेसेंसेफेलॉन और द मिड ब्रेन, ठीक है। इसके पीछे आप ये देख सकते हैं, ये हाइंड ब्रेन है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर आपका पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम ये पोर्शन आता है, और ये आपका फोर ब्रेन है। तो ये हमारा क्या बचता है, मेसेंसेफेलॉन या फिर मिड ब्रेन हमारा बचता है। अब मिड ब्रेन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द क्वाड्रिजेमिनल प्लेट, टेगमेंटम और सेरिब्रल पेडिंकल। क्वाड्रिजेमिनल प्लेट इज ऑल्सो नोन एज द टैक्टल प्लेट एंड इट इज प्रेजेंट डोर्सली। ये डोर्सल पोर्शन आपका मिड ब्रेन का बनाता है, वेयर सेरिब्रल पेडिंकल फॉर्म द वेंट्रल पोर्शन, ओके। मिड ब्रेन कंटेन्स द मेसेंसेफेलिक एक्वेडक्ट। एक पोर्शन प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द मेसेंसेफेलिक एक्वेडक्ट। अब इसका काम क्या होता है मेसेंसेफेलिक एक्वेडक्ट का, ये हमारा चैनल होता है बेसिकली, जो हमारा कनेक्ट करता है 4th और 3rd वेंट्रिकल को, ओके। और ये हमारा इस मेसेंसेफेलिक एक्वेडक्ट को कवर कौन करता है, टैक्टल प्लेट इसे कवर करती है। टैक्टल प्लेट या फिर क्वाड्रिजेमिनल प्लेट इसे हमारा कवर करती है। तो देखिए सिंपल मैं बताता हूँ, मेसेंसेफेलिक एक्वेडक्ट हमारा किसका पार्ट है, मिड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारा 3rd और 4th वेंट्रिकल को कनेक्ट कराता है, जो कि कवर्ड होता है बाय टैक्टल प्लेट, जो कि हमारा किसका पार्ट है, टैक्टल प्लेट, मिड ब्रेन का। समझ में आया इतना बात। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेसेंसेफेलिक एक्वेडक्ट दिखता कैसा है। सो दिस डक्ट पोर्शन, दिस प्लेस इज नोन एज द एक्वेडक्ट ऑफ मेसेंसेफेलन या फिर मेसेंसेफेलन एक्वेडक्ट, ठीक है। ये आपका नीचे क्या है, ये 4th वेंट्रिकल है, तो इन्हें ये हमारा कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले पोर्शन की हम बात करते हैं, दैट इज द टैक्टल प्लेट। टैक्टल प्लेट के अंदर हमारा पेयर्ड कॉर्डल और रोस्ट्रल स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इन स्वेलिंग्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलिक्यूलाई, ठीक है। इसमें हमारा कौन कौन से, रोस्ट्रल होगा और एक कॉर्डल होगा। अब ये भी हमारे पेयर के अंदर होते हैं। अब ये कॉलिकुलाई का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे एज अ रिफ्लेक्स सेंटर एक्ट करते हैं हियरिंग और विजन के लिए। तो बात आती है कि रिफ्लेक्स सेंटर क्या होते हैं। रिफ्लेक्स सेंटर हमारे वो नर्व सेंटर होते हैं जहां पर हमारा एफरेंट सेंसरी इंप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया जाता है एफरेंट मोटर इंपल्सेस के अंदर। अब एफरेंट सेंसरी इंप्रेशन क्या है, एफरेंट का मतलब क्या है कि भाई जो हमारा सेंटर की तरफ आ रहा है, सेंसरी मतलब आ रहा है, ठीक है। अब वहां पर इंटरप्रिटेशन होगा और फिर उसके बाद वहां से इंफॉर्मेशन जानी है, दैट इज इफरेंट मोटर इंपल्स। तो वो जो सेंटर की जहां पे इंफॉर्मेशन आएगी और फिर वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हियरिंग और विजन के लिए क्या करता है, एज ए रिफ्लेक्स सेंटर एक्ट करता है। अब हियरिंग और विजन में भी हमारा रोस्ट्रल वाला हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विजुअल पाथवे के लिए, और कॉर्डल वाला हमारा रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटरी पाथवे के लिए, ठीक है। You can also appreciate this rostral colliculi. This is rostral colliculi and this is the caudal colliculi. Okay. After this, यहाँ पर भी आप rostral colliculi और caudal colliculi देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको लास्ट में दिखाया था ना caudate nucleus, उस पिक्चर के अंदर इतना क्लियर नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज caudate nucleus, दिस इज putamen, दिस इज claustrum, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं इस पार्ट को। इसके बाद बात आती है आपकी टेगमेंटम की। टेगमेंटम
जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा कोर बनाता है मिड ब्रेन का, और ये हमारा प्रेजेंट किसके अंदर होता है, टेगमेंटम, टेक्टल प्लेट और सेरेब्रल पेडंकल के बीच में हमारा प्रेजेंट होता है टेगमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टेगमेंटम ऑफ मेसेनसेफेलॉन, ये कोर पोर्शन आपका फॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप बाकी स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, जैसे ये मैंने अभी आपको बताया था फोर ब्रेन जब मैं बता रहा था कि लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर, ये पूरा अंदर तक ऐसे डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला आपका थर्ड वेंट्रिकल है, और ये एक्वेडक्ट ऑफ मेसेनसेफेलॉन जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप हिप्पोकैम्पस देख सकते हैं, पायरिफॉर्म लोब देख सकते हैं, क्लोस्ट्रम कॉर्डेट, ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल, ये आपका लेटरल वेंट्रिकल होता है। तो ये आपका बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर आप इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, क्वाड्रिजेमिनल प्लेट, ठीक है। क्वाड्रिजेमिनल प्लेट क्या था, आप देखिए यहाँ पर क्वाड्रिजेमिनल प्लेट मैंने क्या बताया था, टेक्टल प्लेट को बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वाड्रिजेमिनल प्लेट भी देख सकते हैं। You can also appreciate this quadrigeminal plate here. Okay. After this is the tegmentum region, tegmentum of the mesencephalon. Next to this, हाँ, ये जो tegmentum है ये हमारा ये फॉर्म किससे होता है, फॉर्म बाय द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है बेसिकली, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, ये सिर्फ आप याद रखिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसके अंदर किस किस टाइप के न्यूक्लियस होंगे, इसके अंदर आपका मोटर और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस होगा, किसका, ओकुलोमोटर नर्व का और ट्रॉक्लियर नर्व का, ठीक है। एंड इसके अंदर आपका रेड न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। अब ये रेड न्यूक्लियर क्या होता है, यह भी हम डिस्कस करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर और पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियर होता है ओकुलोमोटर और ट्रॉक्लियर नर्व का, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये रेड न्यूक्लियस क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो मेसेनसेफेलॉन या फिर मिड ब्रेन का पार्ट है, इसी के अंदर आपका ओकुलोमोटर और ट्रॉक्लियर जो नर्व है, इसके हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर हमारा प्रेजेंट है। तो मेसेनसेफेलॉन का भी कौन सा पार्ट है, टेक्टम, और टेक्टम भी हमारा किससे बनता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से, ठीक है। तो समझ में आया कि मेसेनसेफेलॉन या फिर मिड ब्रेन का पार्ट क्या है, टेक्टम, ठीक है। और टेक्टम भी हमारा किससे बनता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से, ठीक है। और उसी के अंदर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा एक हमारा और पार्ट होता है, दैट इज द सब्सटेंशिया नाइग्रा। दिस सब्सटेंशिया नाइग्रा ये हमारा प्रोमिनेंट लेमिना होता है या फिर लेयर होती है, जो कि हमारे रेड न्यूक्लियस के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये हमारी जब आप क्रॉस सेक्शन करेंगे ब्रेन का, तब आप इसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसका डार्कर कलर होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सब्सटेंशिया नाइग्रा। और इसके अंदर ना आपको जो न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलेंगे, एक्चुअली वो न्यूरॉन्स हमारे डोपामिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और जब इसमें हमारा प्रॉब्लम आ जाती है इन न्यूरॉन्स के अंदर, वो डोपामिन प्रोड्यूस नहीं करते, उसी से एक हमारी कंडीशन होती है ह्यूमंस के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पार्किंसंस डिसीज, ठीक है। तो वो इसी की वजह से सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स है, वो जब डोपामिन प्रोड्यूस नहीं करते, तभी वो हमारी कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिमिनिश्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा इज सीन इन द पार्किंसंस डिसीज। तो कोई भी पेशेंट अगर पार्किंसंस डिसीज है किसी को, तो उसके ब्रेन के अंदर आपको सब्सटेंशिया नाइग्रा ऐसा दिखेगा, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है, डार्कर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ रेड न्यूक्लियस की, तो वो हमारा सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास ही हमारा प्रेजेंट होता है। अब ये रेड न्यूक्लियस एक्चुअल में है क्या, इसे न्यूक्लियस रूबर भी बोलते हैं, और ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा रोस्ट्रल मिड ब्रेन में हमारा प्रेजेंट होता है। ये हमारा इन्वॉल्व होता है मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर। और इसका जो रेड न्यूक्लियस, मतलब जो पेल पिंक कलर है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन, आयरन की प्रेजेंस में। अब आयरन भी हमारा यहाँ पर दो डिफरेंट फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। पहला है हमारा हीमोग्लोबिन और दूसरा हमारा फेरेटिन। तो समझ में आता है कि रेड न्यूक्लियस क्या है हमारा, और ये हमारा रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द टू फॉर्म, हीमोग्लोबिन और फेरेटिन। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है, दैट इज द सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल हमारा क्या है, ये हमारा सेरिब्रल पेडंकल फ्लैंक कर लेता है इंटरपेडिकुलर फोसा को। अब ये इंटरपेडिकुलर फोसा क्या है, मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। सेरिब्रल पेडिकल्स क्या करते हैं, ये हमारा छुपा लेते हैं किसको, इंटरपेडिकुलर फोसा को। अब ये इंटरपेडिकुलर फोसा के अंदर हमारा क्या क्या आता है, इट कंटेन्स मेमलरी बॉडी, हाइपोफाइसियल इनफंडिबुलम और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोफाइसियल इनफंडिबुलम वो था कि जिससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच थी, तो वो सब कहाँ प्रेजेंट है, इस इंटरपेडिकुलर फोसा के अंदर। और इसे फ्लैंक कौन कर रहा है, सेरिब्रल पेडिकल, ठीक है। तो ये मेमलरी बॉडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइपोफाइसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दिस इमेज ऑल्सो शो दी मेमलरी दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट इन दिस इमेज द पिट्यूटरी ग्लैंड और द हाइपोफाइसिस। सो यहाँ पर आपको सेरिब्रल पेडंकल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पर भी आप ये सेरिब्रल पेडंकल को देख सकते हैं।
फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। तो फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन हमारा किसकी तरह एक्ट करता है? एज ए रिफ्लेक्स सेंटर फॉर हियरिंग एंड विजन। जो मैंने अभी आपको बताया, रिफ्लेक्स सेंटर भी मैंने आपको बता दिया, इन्फॉर्मेशन आएगी वहां से जाएगी थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व्स के लिए, ठीक है। फिर ये हमारा कोऑर्डिनेशन कराता है वॉलंटरी मोटर फंक्शन के अंदर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो आता है वो है रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मसल टोन के लिए, बॉडी पोस्चर के लिए और लोकोमोशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा हमारा इनिशियल फेज ऑफ फास्ट मूवमेंट, जो इनिशियल फेज में जो फास्ट मूवमेंट होता है उसके लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, और पार्किंसंस डिसीज के अंदर यही हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा जो सेरिब्रल पेडेंकल है वो हमारे असिस्ट करते हैं रिफाइनिंग मोटर मूवमेंट में, जितने भी आपके मोटर मूवमेंट है उन्हें रिफाइन करने में। लर्निंग, कोई भी आप नई मोटर स्किल सीख रहे हैं उनके अंदर हमारे हेल्प करते हैं सेरिब्रल पेडेंकल। और कन्वर्टिंग दी प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपकी प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन है उसे कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं इनटू द बैलेंस पोस्चर मेंटेनेंस। अब प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? बेसिकली सेल्फ मूवमेंट, मतलब हमें सेंस है सेल्फ मूवमेंट की, उसे हम प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो और बेहतर हमारे बैलेंस को और पोस्चर को बेहतर बनाने में हमारे ये सेरिब्रल पेडेंकल हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो टेक्टम वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यही टेक्टम वाला पार्ट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑडिटरी विजुअल रिफ्लेक्स, और टेगमेंटम हमारा वेंट्रल पोर्शन है जो कि हमारा मल्टी सिनेप्टिक नेटवर्क हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, होम्योस्टैटिक और रिफ्लेक्सिव पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है मिड ब्रेन का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो लास्ट में आपका बचता है रोम्बेनसेफ्लॉन या फिर हाइंड ब्रेन। रोम्बेनसेफ्लॉन और हाइंड ब्रेन को हम फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, माइलेनसेफ्लॉन और मेटेनसेफ्लॉन। Myelencephalon includes the medulla oblongata, whereas metencephalon consists of pons and cerebellum। तो हम हर किसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा ये कॉन्टिन्यूस होता है विद द स्पाइनल कॉर्ड। मैं आपको इमेज के अंदर शो करता हूं, एज यू कैन सी हियर, राइट। सो दिस इज मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड इसके पीछे हमारे क्या चलती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा किसके साथ कॉन्टिन्यूस है? विद द स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके अलावा इट इज लोकेटेड इन द फोसा मेडुलाई ऑब्लोंगाटा। एक फोसा के अंदर लोकेटेड होता है जिसका नाम है फोसा मेडुलाई ऑब्लोंगाटा। द रोस्टल पोर्शन इज वाइडन। रोस्टल पोर्शन, रोस्टली अगर आप देखेंगे इसे, रोस्टल पोर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा वाइडन देखने के लिए मिलता है, ये रोस्टल पोर्शन। तो ये वाइडन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं इस रोस्टल पोर्शन के अंदर, एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर, जो भी मैंने बताया एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियाई। उन न्यूक्लियाई के नाम क्या है? न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व 6th to 12th, ठीक है। सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा और कॉर्डल पार्ट ऑफ लार्ज न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नर्व का प्रेजेंट होगा। कौन कौन सा? क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, और उसके अलावा एक लार्ज न्यूक्लियस जो होता है ट्राइजेमिनल नर्व का, उसका कॉर्डल पार्ट हमारा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर आपको 6 से लेकर के 12 तक सारी नर्व्स के आपके जो न्यूक्लिया है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको और क्या देखने के लिए मिलता है? न्यूक्लियाई ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सेंटर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आपके फोर्थ वेंट्रिकल के पास होते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर कहीं पर भी इस मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट लाइफ और डेथ वाली बात आ जाती है, ठीक है। अभी मैं वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप ब्रेन के अंदर क्या देख सकते हैं? दिस हाइंड ब्रेन को आप देख सकते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर आपका इतना पूरा पोर्शन आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। तो माइलेनसेफ्लॉन के अंदर सिर्फ आपको मेडुला ऑब्लोंगाटा देखने के लिए मिलेगा, और मेटेनसेफ्लॉन के अंदर आपको पोन्स और सेरिबेलम दोनों देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक्चुअल ये इमेज है ब्रेन की, और ये ब्रेन है हॉर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पोर्शन इज द मेडुला ऑब्लोंगाटा, दिस पोर्शन इज द पोन्स, ओके, एंड दिस पोर्शन इज द सेरिबेलम विद ट्री ऑफ लाइफ। ये ट्री ऑफ लाइफ क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो सेरिबेलम विद ट्री ऑफ लाइफ, एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। So, ventral surface of medulla oblongata is divided into halves by ventral median fissure। अब एक वेंट्रल मीडियन फिशर हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा को वेंट्रली डिवाइड कर देता है दो पार्ट के अंदर, वेंट्रल सरफेस को। वेंट्रल सरफेस मुझे लगता है आपको समझ में आती होगी, ठीक है। ये वाली सरफेस जो है ये वेंट्रल सरफेस है,
तो नीचे वाली ये जो सरफेस है, तो इसे हमारा दो पार्ट में डिवाइड करता है और ये कॉन्टिन्यूस रहता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और इसे फ्लैंक कौन करता है, एक लॉन्गिट्यूडनल रिज जिन्हें हम पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। रिज हमारा कुछ ऐसा पोर्शन होता है, मान लीजिए ये जो पोर्शन होगा ना, अगर आप डॉर्सली पोर्शन को देखेंगे तो उसे हम रिज बोलेंगे, ठीक है। तो वो रिज हमारे क्या है, पिरामिड्स हैं। अब मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, ये आपका क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसके बाद ये जो मैं पिरामिड बोल रहा हूँ, दिस वन इज पिरामिड, ठीक है। इसके अलावा ये है ट्रेपेजॉइड बॉडी। ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या होता है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप पिरामिड देख लीजिए क्या होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो वेंट्रल पोर्शन है मेडुला ऑब्लोंगाटा का, उसे डिवाइड करा वेंट्रल मीडियन फिशर ने, ठीक है। वेंट्रल मीडियन फिशर, अब देखिए इसे आप ब्रेक करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, क्या, वेंट्रल। वेंट्रल क्यों बोला, क्योंकि वेंट्रल साइड पर है। मीडियन क्यों, क्योंकि बीच में प्रेजेंट होगी, ठीक है, मीडियन साइड पे, ठीक है। और फिशर है, फिशर का तो मतलब आपको पता ही है कि एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप नेट पर भी देखेंगे फिशर की आपको इमेज मिल जाएगी, तो इसलिए ये इमेज है, ठीक है। अब ट्रेपेजॉइड बॉडी क्या होती है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो ये आप देख सकते हैं वेंट्रल मीडियन फिशर, ठीक है। Each pyramid consists of myelinated axon which originate from the neuron cell body located in the cerebral cortex and extend to the medulla oblongata of the spinal cord। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हर एक पिरामिड है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं वो हमारा किससे बना होता है, उसके अंदर क्या होता है ऐसा, उसके अंदर हमारे माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। अब एक्सोन्स हैं तो इनकी सेल बॉडी भी कहीं ना कहीं होगी, तो इनकी सेल बॉडी कहां प्रेजेंट होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर इनकी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर तो सेल बॉडी है, और जो एक्सोन्स है, माइलिनेटेड एक्सोन्स है, वो हमारे कहां है, इस पिरामिड के अंदर प्रेजेंट है। और ये एक्सटेंड कहां तक होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक ये हमारे जाते हैं, ठीक है। मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। अब मोस्ट फाइबर्स हमारे मिड लाइन जो है, मतलब ये मिड लाइन थी ना दोनों के बीच में, ऐसे था, ठीक है। तो जो मोस्ट फाइबर है इस मिड लाइन को हमारे क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और जब ये इसे क्रॉस करते हैं तो ये हमारा क्या बनाते हैं, पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है। पिरामिडल डिकसेशन का हमारा यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एट द स्पाइनोमेडुलरी जंक्शन, जहां पर हमारा स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ये हमारे मिलते हैं, वहां पर हमारा क्या बनता है, पिरामिडल डिकसेशन, ठीक है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि स्पाइनल कॉर्ड और जो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पर आपका मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर पिरामिडल डिकसेशन आपका फॉर्म होता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये वो फाइबर्स नहीं दिखा रखे हैं, बट वहां पर ये आपका फॉर्म होता है डिकसेशन। और डिकसेशन ऑफ पिरामिडल फाइबर एंड अदर डिसेंडिंग ट्रैक्ट इज द रीजन व्हाई वन साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द वॉलंटरी मूवमेंट इन द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अच्छा कोऑर्डिनेशन करना है तो आपको जो फाइबर्स हैं उन्हें दूसरी साइड भी जाना होगा, तो इसीलिए डिकसेशन ऑफ द पिरामिडल फाइबर ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक साइड ब्रेन की हमारा कंट्रोल करती है वॉलंटरी मूवमेंट कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द बॉडी को। अब रोस्टल एंड पर देखेंगे अगर आप पिरामिड के, तो आपको एक फ्लैट बैंड देखने के लिए मिलता है ट्रांसवर्स फाइबर का, उसे ही हम ट्रेपेजॉइड बॉडी बोलते हैं। तो ट्रेपेजॉइड बॉडी और कुछ नहीं था, ट्रेपेजॉइड बॉडी एक फ्लैट बैंड था ट्रांसवर्स फाइबर का। यहां पर हमने ट्रेपेजॉइड बॉडी देखा था, तो ये क्या है, फ्लैट बैंड ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर। ट्रांसवर्स फाइबर का फ्लैट बैंड ये हमारा प्रेजेंट होता है, ये पूरा हमारा क्या है, फिर ट्रेपेजॉइड बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा का क्या होता है कि ये हमारा कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को और सर्कुलेशन को। इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्सेस हैं लाइक पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स और लैक्राइमल सिक्रीशन, इन्हें भी हमारा कंट्रोल करता है। अब ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटेक्शन ऑफ आई के। ये पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स इज ऑल्सो यूज्ड टू नो द स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया की स्टेज को एनालाइज करने के लिए भी हम पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स का यूज करते हैं, ठीक है। पेरी ऑक्यूलर जो स्किन है वहां पर हम टैप करते हैं तो उससे हम एनालाइज कर पाते हैं। इसके अलावा जो स्नीजिंग और कफिंग, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पोर्शन है, ये भी हमारा यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसके अलावा सक्लिंग, स्वेलिंग, फूड इनटेक मैकेनिज्म के लिए। और लीजन्स अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा पर, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, अगर इसको लीजन हो जाए तो जितनी भी ऑब्वियस सी बात है जो जो चीजें हमारी यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सब नहीं होंगी, जैसे कि क्या, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, इन सब में। और ये तो मेन चीज है, अगर इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, या फिर सकलिंग और स्वेलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑब्वियस ये बात है कि वहां पर सीवियर केस है, तो फिर डेथ होने के चांसेस भी हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट पोर्शन जो कि है हमारा मेटेंसेफ्लॉन। मेटेंसेफ्लॉन के अंदर आपका क्या आता है, पॉन्स एंड सेरिबेलम। पॉन्स हमारा क्या है, पॉन्स हमारा डिवाइडेड होता है दो पार्ट के अंदर, वेंट्रल पार्ट के अंदर और डोर्सल पार्ट के अंदर। डोर्सल पार्ट को हम क्या और बोलते हैं, टेगमेंटम ऑफ पॉन्स भी हम इसे बोलते हैं।
अब इस पॉन्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मिड पॉन्स के अंदर, तो इसके अंदर हमारा चीफ या फिर पोंटाइन न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंटाइन न्यूक्लियस कई जगह मैंने नाम सुना है इसका। तो पोंटाइन न्यूक्लियस हमारा पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा ट्राइजेमिनल नर्व का सेंसरी न्यूक्लियस है, ठीक है। और मिड पॉन्स के अंदर ही आपका ट्राइजेमिनल नर्व का ही मोटर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जैसे आप नीचे जाएंगे पॉन्स के अंदर, तो एब्ड्यूसेंस नर्व का भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फेशियल नर्व का न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और नीचे जाएंगे तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का भी न्यूक्लियस आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं ब्रेन के अंदर, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन क्या है, पॉन्स है, ठीक है। ये पोर्शन क्या हो गया, मेडुला हो गया। ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, सेरिबेलम हो गया। और फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया था कि मेडुला के साथ ही कॉन्टिन्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉन्स की। तो पॉन्स जो है वो हमारा मोटर फंक्शंस को हमारा कंट्रोल करता है, और इसके अंदर हमारे कुछ जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे रिले करते हैं सिग्नल को फोर ब्रेन से सेरिबेलम तक, ठीक है। अलोन विद द न्यूक्लिया दैट रेगुलेट द स्लीप, रेस्पिरेशन, स्वेलोइंग, ब्लैडर कंट्रोल, हियरिंग, इक्विलिब्रियम, टेस्ट, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल सेंसेशन एंड पोस्चर, ये सारी ही चीजें हमारा न्यूक्लियाई बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये फंक्शन इसका हो जाता है। इसके अलावा इट ऑल्सो सर्व एज अ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। फंक्शन अगेन इसमें हमारा क्या आता है, रिले सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेरिबेलम, कनेक्ट फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन, रेगुलेट ब्रीदिंग, इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल। मैं फिर बोल रहा हूं कि कहीं भी ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फंक्शन तो हमने उस पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। यहां पर ये चीज है कि एक फंक्शन हमारे दो पार्ट भी रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो आप कई बार सुनेंगे, अगर अभी तक नहीं सुना, वो है ब्रेन स्टेम। तो व्हाट डू वी मीन बाय ब्रेन स्टेम? तो तीनों को आप प्लस कर दीजिए, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला को, मेडुला ऑब्लोंगाटा को, तीनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वी हैव द सेरिबेलम, and this part is the last part, cerebellum. Cerebellum is the second largest part of the metencephalon and it is located above the fourth ventricle. मैं आपको इमेज शो करता हूं, ये कैसे आपको समझ में आएगा फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर कैसे है। देखिए यहां पर, देखिए आप, ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। इस फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर हमारा क्या पोर्शन प्रेजेंट है, सेरिबेलम, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर हमारा सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। सो इट इज लोकेटेड अबव द फोर्थ वेंट्रिकल। सेरिबेलम हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स वाला पोर्शन हमारा ग्रे होता है और मेडुला वाला पोर्शन हमारा व्हाइट होता है। अभी मैं आपको शो करूंगा। व्हाइट मैटर अराइज कहां से होता है, पेडिकल से होता है और रेडिएट करता है डिफरेंट लोब्यूल्स के अंदर, और ये एक ट्री की तरह रिजेंबल करता है, ठीक है। और इसकी अपीयरेंस की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ या फिर आर्बर विटे, ये आपने सुना होगा आर्बर विटे, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ऐसा आपको शो हो रहा है ना कि जैसे एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये फिर ट्री के अंदर ये डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांचेस की भी ब्रांचेस होती हैं, तो ये ट्री जैसा स्ट्रक्चर ये शो हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ या फिर आर्बर विटे। अब ये सेरिबेलम के भी ना हमारे डिफरेंट लोब्स होते हैं, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। अब एंटीरियर पोस्टीरियर तो ये किसके टर्म्स में, ह्यूमंस के टर्म्स में है, क्योंकि ह्यूमंस की जो पोजीशन है बॉडी की वो कैसी होगी भाई, ये होगी वर्टिकल पोजीशन होगी, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं एनिमल्स की, हमारे एनिमल्स हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट हैं, तो उनकी जो ब्रेन की पोजीशन है वो भी तो चेंज हो जाएगी, और अगर ब्रेन की पोजीशन चेंज हुई तो ऑब्वियस ये बात है कि जो हमारे प्लेन्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। तो जो एंटीरियर लोब ह्यूमंस के अंदर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रोस्ट्रल हो जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि अगर ब्रेन ऐसे प्रेजेंट है और फिर वो ऐसे हो जाएगा, मतलब यही पोर्शन पूरा का पूरा ऐसे हो जाए तो चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पे क्या बोल देंगे, एनिमल्स के केस में रोस्ट्रल बोल देंगे, पोस्टीरियर को हम क्या बोल देंगे, कॉर्डल बोल देंगे। तो दोनों बातें सेम है। अगर आप इसे इमेजिन कर पा रहे हैं तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि एंटीरियर को रोस्ट्रल भी बोल सकते हैं और पोस्टीरियर को कॉर्डल भी बोल सकते हैं। ये केस है ह्यूमंस का और ये केस है एनिमल्स का। और इसके अलावा यहाँ पर ये आपका फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब है, ये सेम ही होता है। फिर इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्केलेटल मसल में हेल्प करता है, और विद रिगार्ड्स टू पोस्चर एंड लोकोमोशन। अब इसके अलावा बैलेंस जो है वो लोकेटेड होता है फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब के अंदर। जो बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पोर्शन हमारा क्या है, फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। कोडल लोब की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन को। रोस्ट्रल लोब की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा रिसीव करता है प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन को, या फिर सेल्फ मूवमेंट का जो इंफॉर्मेशन है उसे हमारा रिसीव करता है। सेंस ऑफ बॉडी पोजिशनिंग, ठीक है, मोटर लर्निंग, ये हमारे फंक्शन होते हैं। बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, फाइन मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा आर्बर विटे की अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बहुत अच्छी इमेज है, बिल्कुल ट्री जैसा आपको
एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि ये ब्रांचेस हैं ट्री की, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांचेस की भी ब्रांचेस हो रही हैं, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं आर्बर विटे या फिर ट्री ऑफ लाइफ। ये पूरा आपका पोर्शन क्या है, ये पूरा सेरिबेलम है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो हाइंड ब्रेन है वो भी कंप्लीट होता है।